تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صلوات. قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات، حاضرین و حاضرات، ناظرین و ناظرات، آج 2 رمضان المبارک 1444 ہجری حسینیہ مسجد اور عزا خانہ زہرہ ٹورنٹو کینیڈا میں جو درس و مجلس منعقد ہو رہی ہے، اس میں آج کچھ فوائد، کچھ برکات، کچھ رحمتیں، کچھ عنایتیں ہیں رمضان کی ذکر کرنی. پہلی عنایت یعنی 16ویں سمجھ لیجیے، کل سے آج 16ویں سے شروع کریں گے. 16ویں عنایت، 16ویں برکت، 16واں کرم، 16واں فائدہ یہ ہے، جمعہ میں عرض کیا تھا، اشارہ کیا تھا، اس میں ذرا وضاحت سے بتا دوں. رمضا یرمضو کہتے ہیں حدت سے، گرمی سے کسی شے کو رگڑ کے جلا دینا. یہ ہے رمضا یرمضو کا مادہ. رمضان کو رمضان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو حدت اور شدت روزہ دار کے وجود میں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے، اس کی رگڑ اور تپش سے اس کے سارے گناہوں کو اللہ ختم کر دیتا. اس لیے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے. وہ بتا چکے ہیں کہ رمضان خود اللہ کا نام ہے، یعنی اللہ بھی جلانے والا ہے، یعنی گناہوں کو جلانے والا ہے. یا مشرکین و کفار و منافقین و فاسقین کو جلانے والا ہے رمضان. تو یہ جو رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اس میں 16واں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ ہمارے جل جاتے ہیں. جل جانے والی چیز کی راکھ تو باقی رہ سکتی ہے، اوریجن باقی نہیں رہتا. یعنی اگر فرشتے بھی ڈھونڈنا چاہیں تو ان گناہوں کو پھر نہیں ڈھونڈ سکتے جو رمضان کی برکت سے، رگڑ سے، تپش سے، حدت سے، تکلیف سے، بھوک پیاس سے جل چکے ہوتے. 17واں فائدہ رمضان المبارک کا یہ ہے کہ خدا نے خود دعوت دی ہے کہ اِنَّ أَنفُسَكُمْ مرہونتن، اے لوگو تمہارے نفس، تمہارے وجود بوجھل ہو گئے ہیں، ان کو خفیف کر لو. نسخہ بتایا ہے خود، فخففوها بکثرت السجود، سجدے زیادہ کر کے اپنے ان وجودوں کو اور اپنے نفسوں کو ہیوی سے لائٹ بنا دو. یہ خود خدا فرما رہا ہے. وہ جس نے سزا دینی ہے وہ خود طریقہ بتا رہا ہے کہ سزا سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. لہذا اس مقدس مہینے میں سجدے کثرت سے کریں، کثرت عبادت رکھیں، کثرت صلات رکھیں، کثرت سجود، کثرت الاستغفار، کثرت صلات اس مقدس مہینے میں رکھیں، تاکہ وہ جو ویٹ ہے، ہیوینس ہے، وہ ہماری ختم ہو جائے اور ہم بالکل لائٹ ہو جائیں. یہ وجودوں کو لائٹ کرنے کا مقدس مہینہ ہے کہ ہمارے ضمیر پہ اگر کوئی بوجھ ہے تو رمضان کی برکت سے
وہ बोझ ختم हो जाता है और फिर हम रमज़ान के अंदर ही गिल्टी कॉन्शियस फील नहीं करते, इसलिए कि हमारा दामन रमज़ान की बरकत से साफ हो जाता है। 18वां फायदा रमज़ान अल मुबारक का ये है कि 13वीं शब में, बल्कि 14वीं और 15वीं में भी, तीनों में रिकमेंडेड है कि दुआए मुजीर को पढ़ा जाए। दुआए मुजीर दरअसल अल्लाह की तरफ से एक गारंटी है, एक पनाह है। अल्लाह अपने बंदे को पनाह देना चाहता है। निस्फ रमजान से पहले 12 रोजों के साथ अल्लाह इतना मेहरबान हो जाता है कि फरमाता है बस तूने 12 रोजे रख लिए हैं तो 13वीं शब में मैं तुझे अपनी पनाह में ले लेता हूं। दुआए मुजीर का फलसफा ये है, हम अल्लाह की पनाह में आ जाते हैं। 19वां फायदा ये है कि रमजान अल मुबारक में एक हदीस शरीफ है, लिस्साइमे फरहतान, रोजादार के लिए दो खुशियां हैं, दो खुशियां हैं। फरहतुन इंदल इफ्तार व फरहतुन इंदा लिक़ाए रब्बिह। एक खुशी तो ये है कि वो जब इफ्तार करता है तो वो तपिश, वो वो भूख सेरी में बदल जाती है, वो प्यास सैराबी में बदल जाती है। खुशी महसूस होती है कि बंदे ने इताअत परवरदिगार में ऑलमोस्ट 11.5-12 घंटे भूखा प्यासा रह के खुद को अल्लाह का मुती साबित किया है। दूसरी बड़ी खुशी ये है, इधर वो खुरमा चौफे दहन में डालता है, उधर उसे अल्लाह से मुलाकात नसीब हो जाती है। ये अल्लाह से मुलाकात हमारे यहां वो नहीं है फिजिकल, यानी अल्लाह की लिका का मौका इंदल इफ्तार है। इसीलिए हुक्म है कि इफ्तार जब आप करें तो सूरतुल कद्र की तिलावत करें। ये देखिए पूरा साल आप सूरतुल कद्र की तिलावत करते हैं, मगर लैलतुल कद्र साल में 3 शबों में आती है, यानी एक दफा 3 शबों में रमजान में आती है। जिस लैलतुल कद्र को सारा साल आप याद करते हैं वो लैलतुल कद्र आती रमजान अल मुबारक में है। ये 20वां फायदा हो गया कि सूरतुल कद्र के पढ़ने का जो लुत्फ है वो रमजान में दोबाला हो जाता है, इसलिए कि बाकी महीनों में ये थ्योरी होती है, रमजान के महीने में ये प्रैक्टिकल हो जाती है। ये लैलतुल कद्र जो खैरुम मिन अल्फे शहर। 21वां फायदा ये होता है कि आप दुआए सहर पढ़ते हैं, खा वो छोटी वाली हो या मफज़ई वाली या वो बड़ी वाली हो, या कुछ शबों में अल्लाह आपको तौफीक मरहमत फरमा दे तो आप दुआए अबू हमजा समाली वो भी पढ़ लें। ये दुआएं अगर आप पढ़ते रहें तो आप बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं। अभी मेरे ख्याल में 7 मिनट में या 8 मिनट में मैंने दुआए इफ्तिताह पूरी पढ़ ली अभी थोड़ी देर पहले, अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ते रहें अगर आप तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, कुरान की भी आपकी स्पीड बढ़ जाती है। एक ज़माने में तो 8 मिनट हो गई थी स्पीड मेरी, तो फिर मैंने कहा ऐसे ना गलतियां हो जाएं। अभी भी मैं 12 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह एक सिपारा कुरान का 12 मिनट में पढ़ लेता हूं अल्लाह के फजल करम से। या एक ज़माने में जो हिफ्स का इम्तिहान दिया था बहुत बड़े आलिम अहले सुन्नत को, तो वो और मैं आ रहे थे बफलो, हम ट्रैवल कर रहे थे। तो मैंने कहा भाई हजरत साहब
हमें आपसे सर्टिफिकेट चाहिए हिफ्स का। उस जमाने में हिफ्स कर लिया था, तो मैंने कहा भाई अब हो सकता है बाद में हिफ्स न रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है मार्केट तो है नहीं हिफ्स की। तो उन्होंने कहा ठीक है आप सुनाइए। उनको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के फजल करम से उनको मैंने 11 सिपारे लगातार सुनाए थे, और उस वक्त मेरी रफ्तार 12 मिनट फी पारा थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो खैर देख के जब पढ़ते हैं तो 15 भी हो जाते हैं, 20 भी हो जाते हैं, ज़रा रुक रुक के भी पढ़ लेते हैं, मगर बहुत तेज भी ना पढ़ें कि गलतियां हो जाएं, और बहुत आहिस्ता भी ना पढ़ें कि दूसरे उकता जाए। मुझे याद है एक जगह मैं अपने एक शागिर्द को साथ ले गया। अब तो खैर हम समझदार हो गए, खुद ही आते हैं, शागिर्द नहीं लाते, यही शागिर्द बनाते हैं। यहाँ वो शागिर्द को जो मैं साथ ले गया, उसको जिम्मेदारी दे दी नमाज पढ़ने की, तो पहले दिन आधा मजमा सो गया। दुआए इफ्तिताह तो हो गई, मगर आधा मजमा बेचारा सो गया। जाहिर है आप लोग माशाल्लाह, मैं आपकी हिम्मत की दाद भी देता हूं कि आप सख्त जॉब भी करते हैं, आपने अपनी फैमिलीज को भी देखना होता है, आपने अपने बच्चों को भी देखना होता है, घर वालों की भी ज़रूरियात होती हैं, घर की भी ज़रूरियात हैं। ख़वातीन बहनें बेटियां हमारी इफ्तार का भी एहतमाम करती हैं। सब काम करने के बावजूद इतनी कसीर तादाद में आपका मस्जिद में आ जाना, इमाम बारगाह में आ जाना, ये खुद इस बात की दलील है कि माशाअल्लाह वो तकवा जो हम हासिल करना चाहते हैं, लअल्लकुम तत्तकून, वो काफी हद तक हासिल हो गया है। डिमांड है, अब सप्लाई की जरूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 21वां फायदा ये है कि आप सहर में दुआए सहर पढ़ते हैं, खा छोटी पढ़ें या बड़ी पढ़ें। जैसे कि वबिसौम गदिन नवैतु मिन शहरे रमज़ान, ये आप नियत करते हैं, नियत के वक्त ये बच्चों को भी ये याद है, या इफ्तार के वक्त आप जो दुआए इफ्तार पढ़ते हैं सूरतुल क़द्र के अलावा, या खुद या अली या अज़ीम का लर्ज़ किया था, अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़ुबूर सुरूर, अल्लाहुम्मा रब्ब शहरिल अज़ीम इला आखिर, जो भी दुआएं अदइया जो है माशाअल्लाह। ये जो 21वां फायदा है सहर के वक्त, ये आज समझ लीजिए कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत याकूब के बेटों ने ये कहा कि बाबा हम तौबा करना चाहते हैं। ये जहन में रख लीजिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे वो जरूर गुमराह हुए थे, वो गुमराह हुए थे, हालांकि वो सारे के सारे बड़े मुत्तकी थे। आप जरा तारीख उठा के देखें या तफसीर में देखें, कोई भी उनमें से बेनमाज नहीं था, कोई बेतहज्जुद नहीं था, कोई भी गैर मुत्तकी जाहिद न था, सब जाहिद थे। पता है उनके जुहद को दीमक किस शय ने लगाया? हसद ने। आप भी आज समझ लें, अगर हसद इंसान को ले ले तो नबी ज़ादा भी हो तब भी बहक जाता है। लिहाजा हसद को तो बिल्कुल ही आप जहन से उतार दें कि शियायान अली को हसद जेब नहीं देता। रश करें, हसद न करें, यानी ये न कहें अल्लाह ने उसको क्यों दिया है, ये जरूर कहें अल्लाह ने मुझे क्यों नहीं दिया। रश्क अल्लाह को पसंद है, हसद अल्लाह को पसंद नहीं, ये गुनाह है कबीरा। खैर बाद में वो ठीक हो गए थे, क्योंकि हमारे कुछ लोग जज्बाती भी होते हैं। हमारे एक हाजी साहब थे, हम कुंभ से आते थे रमजान पढ़ाने, जैसे हमने कहना बिरादरान यूसुफ, उन्होंने कहा अल्लाह की लानत हो उनके ऊपर। भाई अब नहीं भाई, अब तो वो माफ कर दिए गए बेचारे, उनको तो थोड़े से आपको पता है ये हमारे भाई भी कुछ जरा जज्बाती बहुत होते हैं। जी हाँ, खैर तो ये जो फायदा आपकी खिदमत आलिया में जिक्र कर रहा था, इस तनाजुर में सुन ले। जब उन्होंने कहा हजरत याकूब को, अपने बाबा को, कि हम तौबा करना चाहते हैं, तो उन्होंने ये कहा मैं जरूर अल्लाह से कहूंगा, मगर आज नहीं, सहर का इंतजार करो, सहरे जुमा का, ये आज जो दिन था, उस सहर में
सहर के वक्त अल्लाह किसी भी दुआ को मुस्तरद नहीं करता। ये रमजान में आपको सहर मिल जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह, सहरी के लिए मिल जाए, या वैसे ही आप माशाअल्लाह तहज्जुद के पाबंद हों। ये 21वां फायदा। 22वां फायदा, आप 3 शबों में दुआउल जौशन को पढ़ते हैं। आज मुझसे सुन लीजिए, हो सकता है इससे पहले मैंने आपकी खिदमत में यह नुक्ता अर्ज न किया हो। असल में जो दुआउल जौशन है, दुआउल जौशन असल जो ज्यादा इसमें आजम के तौर पर फायदा पहुंचाती है, वो दोनों दुआएं हैं, जौशन सगीर और जौशन कबीर। हो सकता है आपने मिला के ना पढ़ा हो या कम पढ़ा हो, आप एक मर्तबा इन दोनों को मिला के पढ़िए और उसके बाद अपनी फहरिस्त लगा दीजिए हाजात की। आप हैरान हो जाएंगे, वो हाजतें सारी की सारी पूरी हो जाती। ये दुआउल जौशन साल भर भी आप ना पढ़ें तो कम से कम इन शबों में तो आप पढ़ ही लेते हैं, 3 में ना पढ़ें तो 1 में तो जरूर ही पढ़ लेते हैं। तो ये 22वां फायदा है दुआउल जौशन का। इंशाअल्लाह इस पर आप तवज्जो फरमाएंगे। मेरी किताब भी यहां मौजूद है, मैंने उस किताब में ऑलमोस्ट दुआउल जौशन के 40 फायदे लिखे हैं अपनी किताब तोहफे दरवेश के अंदर। अकील के पास वो किताब मौजूद है, कुछ नुस्खे मैं लेकर आया हूं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे दुआउल जौशन के पढ़ने की, और उसके एवज अल्लाह ताला हमारी हाजतों को पूरा फरमाए। खास तौर पर जो सगीर है वो हिफ्ज़ जान के लिए बहुत मुअस्सिर है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से ये मनक़ूब है। ये दुआउल जौशन अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है, यह भी जहन में रखिए। अल्लाह की तरफ से आई है ये दुआउल जौशन, हुजूर को दी गई है, क्योंकि हुजूर सख्त गर्मी में जिहाद फरमा रहे थे तो बदन में ह्यूमिडिटी फील हो रही थी। तो जिब्रील ये दुआ लेकर आए कि आप ज़रा उतार दीजिए। अल्लाह फरमा रहा है आपके लिए नई ज़रा लाए हैं, ये ज़रा पास होगी तो दुश्मन का हमला बिल्कुल कारगर नहीं होगा। यही चीज हमारे लिए भी है। शैतान के शर से बचना है, या शर्र हासिदीन से बचना है, या कुछ हासिद रिश्तेदारों के शर से बचना है। उलझिए नहीं, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, इधर उधर कॉल्स मत कीजिए, दुआउल जौशन को पढ़ लीजिए, साल भर अल्लाह आपको महफूज कर लेगा। 23वां फायदा रमजान अल मुबारक का 23वीं बरकत करामत यह है कि ये 3 अशरे हैं, आप जानते हैं। पहला अशरा है रहमत का जो कल शुरू हो चुका, दूसरा अशरा है मगफिरत का, और तीसरा अशरा होता है बराअतुम मिनन नार। तीसरे अशरे में अल्लाह जहन्नम से बराअत का सर्टिफिकेट अता फरमाता है। पहले अशरे में रहमत इलाही इंसान को घेर लेती है, इसलिए कि वो रहमान रहीम है। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, उसने जो नबी भेजा है वो भी रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। वो रहम फरमाता है, मर्सी उसकी होती है इन 10 दिनों में, खास तौर पर जिनसे हम गुजर रहे हैं। दूसरा जो अशरा आएगा उसमें फिर मगफिरत है, तौबा है। वैसे तो हर शब मगफिरत है, हर रोज मगफिरत है। तो ये फायदा भी होता है कि 3 सेक्शन बन गए हैं। इन सेक्शंस में सेक्शन वाइज भी हम डिमांड कर सकते हैं और अल्लाह ताला सप्लाई फरमाता है। 24वां गिनते आ रहे ना, 24वां फायदा ये होता है, आज ही मैं इस रिवायत को पढ़ रहा था अरबी में, मैं उसका उर्दू तर्जमा अर्ज करता हूं कि 24 घंटों में अल्लाह के फरिश्तों का
ज्यादातर यही काम होता है कि वो रोजादारों और रमजान में इबादत गुजारों के लिए मगफरत की दुआ करते रहते हैं और उन्हें सैल्यूट करते रहते हैं, सलाम करते हैं। आप कितने खुशकिस्मत हैं कि आपको जिब्रील सलाम कर रहे हैं, आपको मिकाईल सलाम कर रहे हैं, आपको मलकुल मौत सलाम कर रहे हैं, आपको इसराफील सलाम कर रहे हैं। ये मलकुल मौत का जब मैंने कहा तो मेरे एक दोस्त हाजी साहब थे, उन्होंने कहा वो तुझे करे मुझे न करे। ऐसे नहीं होता, जो लिखी हुई है उसी वक्त ही मौत आनी है, ऐसे घबराई नहीं। बाज बंदे कभी मौत का हमने टॉपिक शुरू कर दिया, तरहीम की मजलिस थी, आज भी दुआ करता हूँ जो आज के बानियान इफ्तार है, अल्लाह ताला उनके मरहूमीन की मगफरत फरमाए। जो फातिहा इखलास जनाब जफ़र खान साहब ने पढ़ाया था, अल्लाह ताला उसका सवाब उनकी अरवाह को पहुँचाए, और आप सब के मरहूमीन, हम सब के मरहूमीन की अरवाह को, हुसैनिया के बानियान खिदमत गुजारान के मरहूमीन की अरवाह को पहुँचाए। हम सब के मरहूमीन की अल्लाह मगफरत फरमाए और उन्हें आला इल्लीयीन में जगह अता फरमाए। तो 24वां फायदा आपकी खिदमात आलिया में 24वां है सलाम का और मगफरत का। कितने खुशकिस्मत हैं आप हजरात व खवातीन कि जिनके लिए जिब्रील से लेके फितरुस तक, मिकाईल से लेके महमूद फरिश्ते तक सलाम भी कर रहे हैं, मगफरत की दुआ भी कर रहे हैं। क्या खुशकिस्मती है। 25वां फायदा रमजान अल मुबारक का वो ज़कातुल फितरा है। अगरचे वो ज़कातुल फितरा आप पहले भी दे सकते हैं, बेशक अभी भी आप देना चाहें तो भी दे सकते हैं, अलबत्ता उसकी नीयत ये करेंगे कि अभी हम दे रहे हैं अलल हिसाब। अदा उस वक्त होगा कि जब ईद का दिन होगा, ईद की शब में ये वाजिब होता है और ईद के दिन में इसको अदा करना होता है। मगर अगर आप चाहें कि गरीब, मिस्कीन, फकीर, अल्लाह रासी लोग आपके साथ साथ वो भी एंजॉय करें तो आप दे सकते हैं। या ज़कातुल फितरा तो चलिए $12 है, वैसे भी आप उनको खिदमत कर सकते हैं, हदिया भेज सकते हैं। सैदानियाँ हैं बेचारी, आप यकीन करें बाज़ औकात तो मैसेज पढ़ के बहुत इंसान तकलीफ में आता है। सैदानियाँ मैसेज करती हैं मसलन कि हमारे घर में दूध खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। हिंदू पाक में इतनी गुर्बत है कि उन बेचारियों के पास दूध के साथ रोजा रखने के लिए भी पैसे नहीं है, या रूखी रोटी से रख रही हैं या नमक से रोजे रख रही है। तो उनको अपने अपने इलाकों में यकीनन आप जानते होंगे, हत्ता के रिश्तेदार भी हमारे बाज़ औकात बसा औकात बहुत गरीब होते हैं, मगर हम गफलत करते हैं, उन तक पहुंचते नहीं है। तो गोया रमज़ान अल मुबारक में क्योंकि इंसान भूखा होता है, खुद प्यासा होता है, इसे एहसास होता है कि भूख क्या चीज़ है और तपिश की भी, प्यास की भी क्या अहमियत है। इसलिए भूखों प्यासों को ज़रूर कुछ ना कुछ देना चाहिए, राह खुदा में ज़रूर देना चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा पूछा था, बारेला तेरा सबसे अच्छा अमल कौन सा है जिसे तू सबसे ज़्यादा पसंद फरमाता है। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा आप बताएं कि आपका क्या ख्याल है। तो हज़रत मूसा ने अपने 2-4 चीज़ें बयान की। अल्लाह ने कहा नहीं, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी बेलिबास को लिबास देना, आलिम का एहतराम करना, ये वो अहम काम है जो सबसे ज्यादा मुझे पसंद है। लिहाजा एक फायदा ये भी हो जाता है 25वां कि हम अपने गरीब रिश्तेदारों को या अहबाब को या कम्युनिटी मेंबर्स को, यहां पर भी गरीब हो सकते हैं, यहां पर भी बाज लोग हो सकते हैं कि जो गरीब हों, अगर यहां नहीं भी हैं तो अपने अपने औतान में आप कुछ ना कुछ इरसाल करके उन्हें रमज़ान उल मुबारक के दौरान शुमूल इनायात इलाही का मिस्ताक बना दीजिए। ये एक
25वां फायदा है। 26वां फायदा ये है कि शयातीन सारे के सारे 1 to all, ये शयातीन कितने हैं? किसी ने एक मरतबा कहा कि शयातीन कितने हैं? मैंने कहा आज तक हमसे इंसान नहीं गिने गए, जो जाहिर बजाहिर है। आप शैतान हमसे गिनवाना चाहते हैं? शैतान बहुत ज्यादा है, हमारी तादाद से बहुत ज्यादा शैतान है। तो शयातीन सारे के सारे ये 29-30 शब रोज में पूरे महीने में डिटेन कर दिए जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं। मर्दतु शयातीन इस वक्त बिल्कुल जीरो है, जीरो। कोई शैतान फील्ड में बहकाने के लिए मौजूद नहीं है। मेरे एक दोस्त थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह थे, वो जब मैं उस जमाने में तो ये वीडियो वगैरह नहीं होती थी, ऑडियो भी नहीं होती थी, बल्कि ये 80s में, बल्कि 70s कह लीजिए आप। मैं एक जगह जाता था रमज़ान पढ़ाने, तो मैं वहाँ जब जाता था तो वो नीचे से वो सवाल भी बहुत करते थे। तो सवाल मसला उन्होंने किया कि साईं ये बताएं कि अगर वो कमबख्त इस वक्त गिरफ्तार हैं तो ये हमारे जहन में वसवसे कौन डालता है? तो मैंने कहा आपके अंदर जो शैतान बैठा है ये तो गिरफ्तार नहीं है, इसके तो आप गिरफ्तार हैं, वो बाहर वाले शैतान गिरफ्तार हैं। और मिनल जिन्नत वन्नास, बाज़ औक़ात अपने दोस्त भी हमारे शैतान होते हैं जी। आयतुल्लाह अल उज़्मा बुरुजर्दी ने अपने दर्स में एक रोज कहा, कल मेरे घर में शैतान आया था जी, उसने चाय भी पी मेरे पास, मिठाई भी खाई और मुझे वरगला रहा था। इतना बड़ा मुज्तहिद होकर जमीन पे बैठता है, कोई कुर्सी रख, कोई सोफे रख, कोई टाइम रख, जो आता है तेरा हाथ चूम रहा है। इस तरह भी शयातीन जो अपने होते हैं, अपने, वो शैतान बन के मिनल जिन्नते वन्नास गुमराह करते हैं। उस शैतान से आपको डर नहीं है, आपको डर अपने दोस्त अहबाब से होना चाहिए, जो बाज़ औक़ात नऊज़ु बिल्लाह इंसान को जादे हक से हटा देते हैं। कितने हो गए जनाब? 26 हो गए। 27वां, बस सब खत्म करते हैं। 27वां फायदा ये है, इन्ना अबवाबल जिनाने मुफत्तहतुन, जन्नत के दरवाजे पूरे महीने में खुले हुए। आपने क्या करना है? फस्अलुल्लाह अल्लाह युगल्लिक़हा, बस दुआ ये करो अल्लाह से रमजान में इन खुले हुए दरवाजों को जन्नत के 11 महीनों में बंद न करना। 27वां फायदा, व अबवाबन नीराने मुगल्लक़तुन, और जहन्नम के दरवाजे बंद हैं। फस्अलुल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह युफ्तिहा, अल्लाह से दुआ करो कि ये 11 महीनों में जहन्नम के बंद दरवाजों को आपके लिए या रिश्तेदारों के लिए खोल दे। ये हमने दुआ करनी है। 28वां फायदा रमजान, 28वां फायदा रमजान अल मुबारक का खत्म कुरान है। अगर खत्म कुरान कर ले, आज दूसरा पारा माशाअल्लाह खत्म हो गया, ऐसे ही हर रोज एक पारा खत्म करेंगे और फिर जब शबे आएंगी उनमें 2-2 पारे खत्म कर लेंगे, ताकि 29 से पहले पहले खत्म कुरान हो जाए। खत्म कुरान अगर आम लोगों की रिवायातें तो 6666 है तो कम, 336 हमारे यहां, मगर चलिए 6336 या 6666 कुरान खत्म मिल जाते हैं उनको जो आपके मरहूमीन हैं। अगर एक खत्म कुरान आप यहां कर लें, हो सकता है आप घर पे खत्म कुरान न कर सके, इसलिए 6 बजे यहां आना शुरू कर दीजिए। हत्ता के कुरान पढ़ने का और कुरान सुनने का सवाब इक्वल है।
اگر آپ پڑھ بھی نہیں سکتے تو سن لیجئے، گاڑی میں سن لیجئے، آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان 28 برکات رمضان سے خود کو متصف کریں۔ جب پیاس کا ذکر آتا ہے تو اس ننھے مجاہد کی پیاس بہت یاد آتی ہے کہ جسے وہ تیر مارا گیا کہ جس کا وزن صغیر سے زیادہ تھا۔ راوی یہ کہتے ہیں کہ اگر حسین ابن علی نے اپنے بازو کا سہارا نہ دے رکھا ہوتا تو جدھر تیر جاتا ادھر صغیر جاتا۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام پہ بڑی مصیبتیں نازل ہوئیں۔ علی اکبر کی شہادت کوئی کم مصیبت تھی، عباس کی شہادت کوئی کم تھی، اون و محمد کی شہادتیں، اپنے بھائیوں کی، قاسم کی شہادت، مگر کسی شہید کی شہادت کے وقت مولا نے آپ کو یاد نہیں کیا۔ یہ چھوٹا بچہ اتنا عزیز تھا اور اتنی پیاس اس کی سنگین تھی کہ امام نے یاد کیا ہے آپ کو، شیعتی مہما ان شربتم عذب ماء فاذکرونی، اے میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا۔ یہ اس صغیر کے وقت آپ کو میرے مولا نے یاد کیا ہے۔ اور جب واپس لائے ہیں تو میں نے یہ روایتوں میں دیکھا ہے کہ یوں میرے مولا نے عبا ڈال دی تھی علی اصغر کے چھدے ہوئے گلے پر۔ جب اندر آئے تو وہ بہن علی اصغر کی غش سے افاقہ ہوا، ایک جملہ پوچھا، اسقی آخی، بابا میرا بھیا پانی پیا ہے؟ حسین ابن علی جواب نہ دے سکے۔ حسین ابن علی نے اپنی ابا کا دامن سرکا دیا، جیسے ابا کا دامن ہٹایا اور بہن نے بھائی کا چھدا ہوا گلا دیکھا، دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھے اور اپنی اماں کے خیمے کی طرف دوڑتی جاتی تھی اور کہتی تھی اماں ذرا جلدی آ، اماں ذرا جلدی آ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔